सबसे पहला चीज हम लोगों ने पढ़ा लीनियर इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन. If suppose two linear equation is there, one is this, then two line will intersect. What is the condition for that? A1 by A2 is not equal to B1 by B2. Parallel के लिए A1 by A1 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. A1 by A2 Yes, is sir. equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. And कौन सा ही करता है तो A1 by A2 equals B1 by B2 which is equal to C1 by C2. all are equal. This is the characteristics. Correct? Now, second चीज हम लोग पढ़े कि अब suppose ये unique solution मिलता है. Suppose we are getting a unique solution. So in the case of unique solution, how many ways we can find out? इस दो लीनियर इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन मतलब x और y का हमें एक यूनिक वैल्यू मिलेगा. सो हाउ मेनी वेज वी कैन फाइंड आउट? फर्स्ट इज एलिमिनेशन. फर्स्ट वी read elimination method. Second, yesterday we discussed substitution. Both method we discussed yesterday. Correct? So Bhair and Raghav both you can see, and today I will say. Today is very important class. Just half an hour I will teach you. Yes, graphical method. Okay. So in this year 2025 they asked a question from graphical. इससे क्वेश्चन सबसे आंसर वही आता है, लेकिन if they will mention you have to solve with the help of graphical then graphical methods. तो हम लोग दो क्वेश्चन मैंने भेजा है, just can you see, and मैं प्रिंट आउट नहीं निकाल पाया, so just all of you write down first question. Draw the graph of equation. Draw the graph of equation. Yeah, write down. Draw the graph of equation x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Draw that. This is 4 marks question. Draw the graph of x minus y plus 1 equal to 0, 3x plus 2y. Determine the coordinates of the vertices of, write down, determine the coordinates of the vertices of, determine the coordinate of the vertices of triangle, determine the coordinate of vertices of the triangle formed by these lines, formed by these lines, and x-axis. Determine the coordinate of vertices of triangle formed by these lines and x-axis and set the triangular region. And set the triangular region. And set the triangular region. Next question. Sir, I have a doubt, sir. So what's the meaning of the meaning of determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines? Just I will discuss. Just because today I had not even here the question paper, so just I am telling to write the question. Next, write down the second question. I will explain. Just give me 2 minutes. Draw the graph of 2x plus y equal to 6 and 2x minus y plus 2 equal to 0. Okay, draw the graph of 2x plus y equal to 6, 2x minus y plus 2 equal to 0. Set the region
state the region bounded by these lines, and x-axis. Find the area of shaded region. All of you have written the question. Where Raghav written? Already I shared in the group, correct? मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ इसलिए लैपटॉप पे, so I'm not able to see you. Okay, so just you can see if board में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मुझे यहीं से देखना है, ठीक है? Now first question, just all of you see first question. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ड्रॉ द ग्राफ. आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं. क्या हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में ये दो लीनियर इक्वेशन है, क्या इसका आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? Anyone, those who know how to plot the graph of this? Intersecting lines. Yeah, this is intersecting because coefficient of x is 1, x is 3, so 1 by 3 minus 1 by 2. Definitely a1 by a2 is not equal to b1 by b2. So it will intersect. But I want third method. To find out with the help of graphical method. वो कैसे बनेगा? Anyone? Ayush? Yes, sir. Do you know? Sir, how to plot it? Yeah. Sir, you have to as you put any value for x and then you can find the value of I. हाँ. देखो, मैं अब बताता हूँ. One thing is crystal clear. The nature, why we are drawing the graph. First question is why we are drawing the graph. ध्यान से समझना, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पढ़े थे, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. हाँ, है? वही सी लर्निंग वाला है, ठीक है? ध्यान से देखना, समझने का कोशिश करना बच्चों, ठीक है? समझने का कोशिश करना. आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टॉपिक जो है अपने आप में व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? फिगर को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट? एक ग्राफ से उसका पूरा नेचर पता चल जाता है. व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ, अगर मैं बोलता हूं कि भाई आप ये, तो हमको ये किस तरह का ग्राफ चाहिए? पैराबोला, करेक्ट? ऐसा ग्राफ तो हमको दिखता है, रोज दिन दिखता है. ऐसा भी ग्राफ हमें दिखता है. ये क्या है? एलिप्स है, तो आगे आएगा. लेकिन अब मान लो ये क्या बोलेंगे? ये क्या है? लाइन. स्ट्रेट लाइन. तो अब समझने वाली बात है कि सभी कोई एक इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं. ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने भी, अब अगर मैं बोलता हूं दिस इज माय सिग्नेचर, दिस इज आल्सो इक्वेशन, ये भी इक्वेशन है, ठीक है? ये भी एक्चुअल में किसी चीज का इक्वेशन बनेगा ही बनेगा. कोई अगर ऐसा लिख दे, ये भी एक इक्वेशन फॉर्मेशन बन सकता है, ठीक है? कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्राफ. तो हम लोगों को सबसे पहला बेसिक चीज पढ़ना है स्ट्रेट लाइन के बारे में, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन का नेचर कैसा होता है? स्ट्रेट होता है, सिंपल. स्ट्रेट लाइन का नेचर कैसा रहेगा? स्ट्रेट रहेगा. मेरे को एक साइड भी कर देता हूं.
उधर वहां फैन चला दो। ठीक है, ध्यान से देखो। तो स्टेट सभी के घर में, अब मैं पूरा प्रैक्टिकल वे में तुम लोगों को बता रहा हूँ। सभी के घर में कपड़ा डलता है, तो क्या करती है मम्मी लोग? कपड़ा धो करके वॉशिंग मशीन से नीचे डाल देती है। कहाँ पे कपड़ा डालते हैं? वायर पे। करेक्ट, सभी के घर में वायर पे ही डालते हैं। तो वायर अगर हमको डालना है तो किसी के घर में ऐसा ऐसा वायर है? वायर तो सीधा है। करेक्ट, एकदम ध्यान से लॉजिक सोचना। अगर हमें वायर टांगना है ऐसा, तो कितने मिनिमम पॉइंट का जरूरत है? तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे ठोका ऐसा, और एक इधर तीर। उसके बाद उसको जो भी टांगना है उसमें वायर डालना है तो वायर डाल दिए। करेक्ट, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। यही कॉन्सेप्ट वी विल यूज टू ड्रॉ द ग्राफ। यही इसमें तो अगर सपोज ये हम, तो इसमें कितने पॉइंट्स हैं? करोड़ों पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। लेकिन टू मेजर पॉइंट, एक यहाँ का है और एक यहाँ का है, जिस दो पॉइंट से कनेक्टेड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टेक्निक सीखेंगे। अगर हमको इसको एकदम ऐसे बनाना है मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड, तो क्या करना है उसका ट्रिक बताता हूँ। स्कूल में पढ़ाते हैं बहुत ही अलग तरीके से, वो 10 तरह का पॉइंट होता है। तो हमें देखो ध्यान से, व्हाट यू हैव टू डू, x - 1 ऐसा देंगे। यही फर्स्ट स्टेप, टेक द कांस्टेंट राइट साइड। टेक द कांस्टेंट राइट साइड। सो व्हाट वी कैन राइट? पहला स्टेप करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगर लिखेंगे ऐसा तो क्या, 3x + 2y = 12। ये तो ऑलरेडी इक्वल में है, कोई चेंज नहीं करना है। इसमें क्या करेंगे? 2x + y -2। पहला स्टेप सबको क्लियर। सेकंड स्टेप यानी कि हमें इसका ग्राफ, तो क्या करना है बच्चों? जस्ट ऐसा एक बॉक्स बनाना है और यहाँ पे जस्ट यू राइट x and y, जस्ट राइट x and y। सो जस्ट अभी हम लोगों ने देखा ओनली 2 पॉइंट इज मोर देन सफिशिएंट। तो वो 2 पॉइंट्स लेने का तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे लेना है। जस्ट यू पुट द वैल्यू, एक बार x को 0 डाल, x को 0 डालेंगे तो 0 - y = -1, ये और ये कट जाएगा, y = 1 होगा। करेक्ट? हाँ भाई, तो करना है और ठीक है। y को एक बार 0 डालो, वो लास्ट ईयर में किए थे सेम, y को 0 डालो -1। एग्री सबको? कितना देर लगेगा इसको बनाने में? 5 सेकंड। ठीक है, नो सेकंड इक्वेशन सेम है Sir, now it will become -1, no sir, for y also. x = 0, y = 0, then x - 0 + 1 = 0। यहाँ पे No sir, you wrote y and next to that you wrote 1. Shouldn't it be -1? Yes, x, sir. no, see, x value is 0, -1 = -1. So -1 minus we cut them, y = 1 na? Okay sir. Second part we are putting y = 0. So y = 0 means in this equation we are putting, so x - 0 = -1। x का वैल्यू क्या होगा? ये तो एकदम आसान है सबके लिए। Now to plot the point, to plot this graph in the graph paper, you get the graph paper, लेकिन अभी तो graph paper है नहीं हमारे पास। तो हमें क्या करना है? How to plot? ग्राफ पेपर ऐसा ही रहता है, करेक्ट? यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसा ही रहता है ना, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1। ग्राफ पेपर तो सब देखिए, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x 0 1 y 1 कहां पे होगा? है 0, 1 यहाँ ना होगा,
0 कॉमा होगा सबको खैर Yes, sir. x minus 1 this one minus 1 y 0 why we are taking like this because अब अगर ये दो पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो हमारा लाइन कनेक्शन दिख जाएगा करेक्ट आप यहाँ पे पॉइंट 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं लेकिन आपको वो कटिंग x और y का नहीं मिलता है दैट इज द डिसएडवांटेज that is the disadvantage same way you can solve for 3x plus 2y equal to 12 so यहाँ So y is equal to 6. So y equal to 6. हाँ वाह very good होगा now x 0 to 6 0 1 2 3 4 5 6 0 comma 6 can we put the point here 4 comma 0 point is can we cut can we join तो ये जो बच्चा हुआ ये वाला ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ या नहीं हुआ करेक्ट लेकिन हम लोग अभी क्या बना रहे हैं हम लोग अभी बना रहे हैं ये हाथ से बना रहे हैं ग्राफ से बना नहीं रहे तो अगर आपको सपोज यू विल नॉट गेट द ग्राफ पेपर तो माय रिक्वेस्ट इज you have to solve with any one method either you can use either you can use substitution or elimination and find out the point of intersection this is the technique I am telling you okay this is the technique तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं मैं ऑलरेडी पढ़ाया था तो x minus y equal to minus 1 dx plus 2y equal to 12 can I multiply by 2 elimination method all of you read so 2x minus 2y minus 2 dx plus 2y 12 5x equal to 10 x equal to 2 होगा and x value just you substitute in this equation 2 minus y equal to minus 1 minus y equal to minus 1 minus 2 so minus 1 equal to minus 3 तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ बच्चों 2 and 3 हुआ यस और नो तो यानी कि ये पॉइंट क्या है देखो ये एग्जैक्टली 2 पे कट हो रहा है और यहाँ पे देखो क्या एकदम जबरदस्त बना है करेक्ट ना तो 2 कॉमा करेक्ट अब एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों सपोज दिस इज 1 2 3 4 5 5 यूनिट है बेस इनटू हाइट तो 1 by 2 into base into height कितना होगा बच्चों ये 3 ना 15 by 2 square 7.5 that's it आसान नहीं है तो इसको प्लॉट करना है ये वाला ऐसे ऐसे प्लॉट करेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड हाँ ये टेक्निक है क्यों क्योंकि हमको नहीं तो मैं इधर कहीं पर भी पॉइंट प्लॉट कर देता ना तो इस ये क्या है चालाकी से हमें निकाल लेना है if suppose they will not give you the graph paper or in fact sometimes in the graph paper suppose that is not correct whatever the line you draw that is suppose not correct but if you get the point of intersection of the two line तब आपके लिए इजी हो जाएगा ना तो कभी गलती लेने का सवाल होगा तो इसलिए समझ में आया इजी है आयुष इजी Yes, sir. ठीक है राघव धैर्य हाँ लिख लो ये और सेकंड क्वेश्चन ट्राई टू सॉल्व गिविंग यू 5 मिनट टाइम Sir, should I do on graph paper? क्या बोल रहे हो
Sir, should I do on graph paper? If you have graph paper, then it is well done. Okay. Sir. जब है ग्राफ पेपर तो ग्राफ पेपर भी बना सकते हो. So 0630 इसका सेकेंड वाला पूरा निकालो. तो ये भी है. हाँ, एरिया सब निकालना है, एरिया निकालना है. देखो यहाँ पे क्या बोलता है, एक्स एक्सिस के साथ हमारा जो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है वो निकालना है. बस आज यही दो क्वेश्चन सिर्फ पढ़ाऊंगा. अब हमारे साथ पास सिर्फ एक बचा हुआ है, वो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम. दैट्स इट. नेक्स्ट वीक में हम लोग शुरू करेंगे. तभी एक वीक तक पूरा प्रैक्टिस करना है. और फिर ट्राई टू सॉल्व. अपने से करोगे तो कॉन्फिडेंस करोगे. क्वेश्चन है. हाँ, ये माइनस का भी बेस कम करना क्या चीज के लिए? बेस. वो तो लेंथ तो लेंथ में माइनस तो नहीं आएगा ना. लेंथ में माइनस नहीं आएगा, लेकिन वो हमारा कितना ये हो रहा है, एक एक यूनिट का डिफरेंस है ना. सेकंड का आंसर कोई बताएगा? तो 10 है एरिया. आंसर 10 है. 10 तो नहीं है. मतलब मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 और 4 के बीच में आ रहा है. तो मैं 4 ले लिया क्योंकि 4 को नजदीक है. नजदीक. इसमें परफेक्ट नहीं है. तुम पहले दोनों को सॉल्व करो. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहा है वो बताओ. 3 4 है 3 4 एक्स एक्सिस पे 3. नहीं, वहीं पे गड़बड़. मेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका बता दिया हो. इधर यू कैन यूज एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन. पहले निकाल लो, उसके बाद ग्राफ पे बनाओ, देन इट इज वेरी इजी फॉर यू.
हाँ और फोर वन न, थ्री वन नहीं anyone anyone Ayush Dhare Raghav anyone Sir, I'm getting in the middle, sir. no problem just point of मेरे को 2x plus 6 2x plus y equal to 6 2x minus y plus 2 equal to इसका point of intersection निकाल के बताओ थ्री और फोर के बीच में आ रहा है point of intersection। बाबा हमें तो कुछ x का वैल्यू आएगा ना x और y का वैल्यू तो आएगा ना Sir, that will come in decimal now, sir. एरिया विल सॉल्व लेटर बट फर्स्ट ये हो गया ना तो x और y मिल गया देखो जस्ट सी नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल चालाकी किसमें है you have to solve 2x plus y is 6 2x minus y equal to minus 2 am I right like this if we want to solve then 2x plus y 6 है और ये डायरेक्ट कट करेंगे then 4x equal to 4 x equal to 1 ना ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया अरे हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं ना कभी तो किए हैं just substitute any one equation suppose I put in this 2x plus y equal to 6 2 plus y equal to 6 y equal to 6 minus 2 4 मिल रहा है 6/2 डिवाइड कर दीजिए और वही तो बोला 1/4 1/4 ही तो बोला मैंने 1 4 बोले थे हाँ बहुत अच्छा 2x अब इसको सॉल्व कर देते हैं सो x y x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना 6 y का वैल्यू 0 हो गया x y x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2 y का वैल्यू 0 वेरी गुड एक्सीलेंट करेक्ट अब इसको प्लॉट करना है तो देखो मैं टेक्निक क्या अपनाता हूँ x मैक्सिमम यहाँ पे 0 है और 2 मैं सिर्फ वही पॉइंट देता हूँ यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 ऐसा y में x 0 है तो 6 है 1 2 3 4 5 6 ये अंदाज से बना रहे हैं बच्चों यहाँ पे 0,6 होगा ये वाला पॉइंट और 3,0 ध्यान से देखो x का वैल्यू 3,0 दिस इज 3, तो ये वाला हमारा ऐसा आएगा ऐसे थोड़ा सा दूर से लाना है करेक्ट फिर x का वैल्यू 0,2 0,2 कहाँ होगा बच्चों 0 1 2 यहाँ पे और x का वैल्यू -1 तो ये ऐसे कटेगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्चुअली क्या होगा x का वैल्यू 1 देखो 1 2 मेरा क्या सटीक बन रहा है हाथ से भी बन रहा है ग्राफ की तरह मेरे भी वही पूरा आंसर 1/4 हाँ अब एरिया क्या हो जाएगा बच्चों 10 नहीं कैसे 10 होगा ये हाइट है 4 और 1 2 3 4 5 1/2 5 into 4 कितना हो जाएगा कौन सा फाइल केस क्या ऐसे बोलते ये वाला देखो ये 1 यूनिट है 0 लेंथ कितना है Sir, mine. हैं वो दूसरी ये 1 यूनिट है अरे ये भी 1 यूनिट हम ये गलत किए हैं गलत है ये नहीं तो 0 1 2 3 जाओ That is the point of intersection for 4,1. ये नहीं that this is correct 1,4 अब लेंथ कितना है 1 2 Or it's a 1,4. 4 है
8 square unit. Sir, in graph also I got 1,4, but my drawing was very bad, sir. I couldn't understand. No problem. Mine also like you only. The next time the graph sheet होगा. बस आज हम लोग सिर्फ यही 2 क्वेश्चन करेंगे. अब हम लोग नहीं, अब हम देते हैं जो हम हाँ 3 क्वेश्चन देंगे. Only 3 क्वेश्चन. Okay. I'll give you only 3. Graphical based. No, not graphical based. Elimination and substitution. ठीक है. चलो, ये समझ में आया. अब ये दोनों 4 मार्क्स क्वेश्चन थे. अभी ये जो है देखो मैं अभी क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ बच्चों, जो आया था हमारा इसमें बोर्ड में. ठीक है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, पता चलेगा कहाँ गया भाई. So what's the length of the base? This is 4 length. 1, 2, 3, 4. Sir, it's 4. Correct. Now this is see 0 minus 1. This is 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit. Oh yes, sir. एक मिनट. आगे देखा तो था क्वाड्रेटिक का. यहाँ पे है मेरे 30 से 35 मार्क्स के क्वेश्चन मेरे पूरे गए. सेम टू सेम ही क्वेश्चन आ गए. कहाँ से देखा था. ठीक है. हाँ. ये देखो. Write down. Check whether the following system of equation is 3 marks question. Check whether the following system of equation is consistent or not. Check whether the following system of equation is consistent or not. Check whether. अरे whether ये whether नहीं होगा. वो यहाँ पे check whether. Check whether the following system of equation is consistent or not. ठीक है. If consistent, solve graphically. X minus 2y plus 4 equal to 0. 2x 2 by 1. Not consistent. Huh? X is equal to. It is consistent. It is unique solution also. Exactly. 1 by 2 and 2 by minus 6. Consistent मतलब सब equal है. Remember, consistent in the both case. When the unique solution is there, then also consistent. When the infinite number of solution, then also consistent. So here consistent. Solve. Minus 4, 2x minus y equal to 2. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 2x minus 1. तो x equal to 1. तो y कैसे मिला? वो पता नहीं. So the point of intersection is 2 and 1. What? नहीं भाई 4 and 4 होगा ना. देखो आया है किसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. Sir, I got 4 and 4. एक वैल्यू x आ गया चाहे y आ गया तो जस्ट यू सब्स्टिट्यूट इन द अदर इक्वेशन. दैट्स इट.
पहला क्वेश्चन क्या है? तुम्हारा टेस्ट में प्रेशर ना हो इसलिए मैं बनाते जा रहा हूँ। तुम लोग टेस्ट प्रेशर ना हो, ये आया है सबका आंसर। Sir, is the answer 4,4? Yes, yes. Oh yes, sir. After that, you have to plot. Just you match your answer. क्या नहीं हो रहा है? ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो मैं बना दिया ना। x minus 2y equal x 0 तो y का वैल्यू 2, y 0 तो x का वैल्यू माइनस x वैल्यू 0 minus 4 y वैल्यू इज 0। अब तुम गलत बनाओगे तो फिर उसमें टीचर का तो गलती नहीं है। 0,2 है, 0, माइनस 0, 1, 2, 0,2 यहाँ पे होगा और x का वैल्यू माइनस 4। बच्चों 1, 2, 3, 4 minus 4,0। This line will cut like this or not बच्चों? Correct? x 0, y minus 4 ये कहाँ पे होगा? -1, -2, -3, -4 2,0, 1, 2 so definitely ये ग्राफ पेपर में अगर बनाओगे इससे थोड़ा सा ये 4,4 हाँ देखो टेक्निक अपना कहूँ जी आंसर भी मैच करना चाहिए ना। ये वाला लाइन को यहाँ पे ऐसे कर दिया और इस लाइन को जबरदस्ती स्ट्रेट लाइन बना दिया। जुगाड़। तो ये हमारा फोर्थ कॉमा है। One, 2, 3, 4, 5, 6. Base is 6. ऊपर 6 आ आया है ना ऐसा ग्राफ बनेगा ना, यही है सिंपल ग्राफ। 12 unit square. दिस इज द 12 unit square होगा। नहीं 12 यूनिट स्क्वायर के लिए हम लोग को यहाँ से यहाँ तक पहले परपेंडिकुलर डालना होगा। ऐसा सीधा हाफ ये स्क्वायर हाफ ये सही ना आएगा इसमें डायरेक्ट। ये लाइन एक्चुअल में ग्राफ पेपर पे स्ट्रेट आएगा, यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है। सर बट फिर भी हाफ into 4 into 4 ही रहेगा। हैं? हाफ into 6 4 ये कितना था हमारा, ये कितना था बच्चों? -4,0 1, 2, 3, 4 ये कितना था? 2 6 1/2 6 into 4 12 स्क्वायर यूनिट होगा। करेक्ट, ये इजी तरीका है। आया इतना सब कुछ क्लियर है? हाँ अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो, अगर ग्राफ पेपर है भी ना तो आप कोशिश क्योंकि आपको आंसर मालूम हो जाएगा ना। टेक्निक समझो, आंसर मालूम चल गया ना कहाँ For पे। which triangle you found the area? ABC Oh, that triangle. Sir, they asked us to find, sir. है। Sir, did they ask us to find the area? हाँ just we have to draw one perpendicular and we will make this as a right angle। तो अभी इसमें नहीं आता, इसमें एरिया इसमें जो है हम लोग को निकालना है। तो whatever the basic thing that I taught, whatever the unit is there, like this is -4 means 4 length is this side, 2 length is this side, 1 and 2, correct? So total length from base is here and height is always constant, so height is always 4 here, so base into height, so it will give you the total area. Common sense, this is the
but this is not the exact. इससे भी बनता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इसको फार्मूला भी है, ठीक है. Now, can you try to solve? I am giving you just question. हाँ. For what value of k? Write down. For what value of k? मैं जो पेपर दे रहा हूँ बस उसी से तुम बना. ये समझ में आया? आज से क्लास सबको समझ में आया, ठीक है. For what value of k? Following system of equation have. Following system of equation have infinite many solutions. Following system of equation have infinite many solutions. 2x plus 3y equal to 4, k plus 2x, 6y equal to 3k plus 2. This is the first equation, and another equation. Try to solve with any one method, the method that you know, and get the answer. I will check your answer right now. This is 3 marks, 3 marks. Sir, can you repeat the question, sir? For what value of k? For what value of k? For what value of k? System of equation has infinite many solutions. What is infinite many solutions? ठीक है, just solve. So first one is 2x plus 3y equals 4, no sir? Yeah, 2x plus 3y equal to 4. नहीं, अभी बनाना है, अभी तुरंत करेक्शन करके तुरंत मार्क्स दे देंगे. ऑनलाइन वाले को भी भेजना है. So you have to plot this on graph. No, you have to solve with any method. Oh, okay, sir.